You all are loving it here already. Vaman sir, thank you so much for being here first of all. You know, it's so good to see you. Happy New Year. And what would you like to say to all the people here? क्या बोलना चाहेंगे अभी? I feel a little out of place with these beautiful women on stage. कुछ महीने पहले मुझे फ़ोन कॉल आया from the director Maruti sir और फ़ोन रखा, मेरी बीवी सामने बैठी. पहले तो the question किसी ने कहा कि what is this movie, कुछ supernatural है? 40 साल से शादी किया, वो सब supernatural ही होता है उसके बाद. सही बात है. तो मेरी बीवी सामने बैठी थी, तो बोले किसका फोन था? saying I just got an offer for a film with Prabhas. She said, do it. Do it. I said, okay. So I picked up the phone, I called up and I told Maruti, हाँ do it. मतलब कहानी क्या है, कुछ नहीं मुझे सुनने, मतलब बीवी ने बोल दिया खत्म होगी बात. तो बोले do it, okay. फिर मैं हैदराबाद गया शूटिंग के लिए. Maruti sir, the most polite man, and Prabhas of course मैं बाद में बात करूँगा बहुत. क्योंकि हम सबसे करीब हैं यहाँ पे. So please मुझे बताएं सर, वो आपने एक बात कही थी कि प्रभास सर के बारे में कुछ बताने वाले हैं आप. So how was it working with the superstar, the biggest pan India superstar Prabhas? Please बताइए थोड़ा सा. So I think Zarina ji expressed herself so sweetly. मैं वो मैच नहीं कर पाऊँगा about brother Prabhas. सेट पे जब गए तो एक ऑरा होता है, फिल्मों में देखते हैं, बहू ने देखा, कितने सारे पिक्चर में देखे. He's got this larger than life aura about him. So we expect that his behavior will also be like a superstar. And it's not. He, with his team, with the other actors, with the actors with the smaller parts, with the technicians, with every single person, Prabhas talks like a young boy. There's something very boyish about him. There's something very innocent about him. He's enjoying his superstardom, but he's not putting it in your face. He's a superstar, we recognize it, but he doesn't want you to treat him like a superstar. And I think all of us agree in that way. He likes he likes to joke, he likes to laugh, and anybody says something funny, he's the first one to laugh the loudest and the longest, as if to say he's still a teenager. It's so beautiful. It's so the innocence of a person who has reached a certain level that is retained. I would like to be like that. Wow. Yeah. Wow. Thank you so much, sir. Thank you. The main thing, what my darling Zarina ji said, कहाँ भी जाए हम, और क्या चाहिए? पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल, लेकिन लव और रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं जब हैदराबाद गया और मैं सेट पे गया, इतना लव, इतना रिस्पेक्ट, I can't tell you. I just feel so honored to work with all of you. I didn't get a chance to with you, Zarina ji. I didn't get it. करेंगे. Do it, I said. Do it. और दूसरा, every single crew member, every assistant, Maruti sir, Vishwas sir, so nice. He came to the set. खास मिलने आए थे आप. And I get a call from Anil Tahan ji one day, and he says, Bhaman, Raja Saab. I'm like, huh, what happened? Let's do it. He said, it's so exciting. It is so big. The scale is fantastic. And it's a lot of fun. बहुत सारा comedy है इस picture में. आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन picture देखने के बाद पता चलेगा. Thank you very much, everybody. And one more thing, give this gentleman a big hand. He's doing such a warm and energetic. Come on, do it, I said. Come on, yeah. Thank you so much. तेलुगु फिल्मों में ज़्यादातर हमेशा फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है कहानी. तो उसमें कोई भी आर्टिस्ट फिट हो सकता है, चाहे मैं या कोई भी. तो जब मुझे ऑफ़र किया था, उन्होंने आउटलाइन मुझे बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी. और प्रभास का नाम सुनने के बाद तो कोई ना बोल ही नहीं सकता. तो मैंने कहा चलो करते हैं. करने के बाद ये हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने सिंपल आदमी दिखते हैं. इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. उन्होंने दिल खोल के जो इस पिक्चर में खर्चा किया है, मैं बता नहीं सकती. किसी चीज़ के लिए उन्होंने ना नहीं कहा. थैंक यू सो मच. और प्रभास को मैं, सब लोग डार्लिंग बुलाते हैं. मैंने कहा डार्लिंग क्यों बुलाते हो? मैंने उनसे कहा प्रभास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल? तो ही सेड खूबसूरत, तेलुगु में कहा. फिर हैप्पीनेस को क्या कहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा. एंड डार्लिंग का मतलब क्या है? डार्लिंग का मतलब प्यारा. मैंने कहा नहीं, डार्लिंग का मतलब प्रभास. ऐसे ही सेड, ओह, ही केम एंड आस्क्ड मी, हाउ स्वीट ऑफ यू टू से दैट. ही सेड ही इज़ रियली डार्लिंग. जिसने भी ये नाम रखा एकदम सोच समझ के प्यार से रखा है. मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म में काम करने के लिए. और पिक्चर ख़त्म हो गई, बुरा भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. इंशाल्लाह फिर करेंगे काम प्रभास के साथ और अपने विश्व साहब के साथ. हाँ, चलो. Thank you, ma'am. But I will start off by saying something else. कि जब मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया था, मुझे लगा था कि कोई मुझे स्कैम कर रहा था. I actually thought it was a scam call. And क्योंकि इसकी वजह ये थी that I had done this movie with Talapati Vijay called Master, which was a really big hit. And उसकी
इमीडिएटली शायद 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया था प्रशांत नील सर से, जो कि सलार के डायरेक्टर हैं, एंड उस टाइम पे वो सलार बना रहे थे और वो कास्टिंग कर रहे थे फॉर द लीड इन सलार. So I got a call for that, and I met Prashant Neel sir, and it was a great meeting. And because of dates or something, वो workout नहीं हुई, मैं सलार कर नहीं पाई. And I got a call after 6 to 8 months after that, saying that this is for a Prabhas movie. And I'm like, अरे 2 फिल्में बन रही है, one is Kalki जिसमें Deepika is there, and one is Salar जो कि शुरू हो गई है. And I googled and I couldn't find any other movie. तो मुझे लगा पक्का someone's pranking me, someone knew कि मैं सलार करने वाली थी, so some friend of mine has decided to pull my leg. And then they called me to Hyderabad. I'm like, अभी कोई prank को इतना तो stretch करेगा नहीं, it can't be like at some point they have to face me, right? And then they really had to convince me, नहीं ये असली में एक film है, and we really want to cast you, and it's a leading lady, and it's a fabulous role. Please, they had to like say, please come meet me. And then I went to Hyderabad, then I met Maruti sir, and then I understood कि अच्छा ये उनकी अगली picture वो जो शुरू करे, they wanted me for that. So it feels like destiny to make my Telugu debut with Prabhas sir after missing out on Salar. So I'm happy I could do that because I've been a huge Prabhas fan since a long time, and I'm a huge Bahubali fan as well. So I'm happy to be here. I'm happy to have worked with him. Happy to have known him in person. He's very sweet. Like they all say, darling is a very, very correct nickname for Prabhas sir. For you and sets पे क्या क्या होता था? मैंने सुना है खाना वगैरह प्रभास सर के सेट्स पे बहुत आता है, and हाँ जी. है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. So मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेएन सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं. और मैंने कहा ओके. तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ, और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज दैट्स व्हाट यू थिंक. एंड देन when then SKN sir sent me all the links, then I was like, okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like, oh no. So then I called him back and I was like, हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति sir और SKN sir मुंबई आए. तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का. फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए. मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से, एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस. उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ, बिकॉज वज़न आपका बढ़ने वाला है. सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था, एंड उनका स्पेशलिटी है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड, एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग. एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करीज. Best chicken biryani. Best chicken biryani I've ever had. and then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है. फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए, क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका. तो मुझे बहुत होमली फील हुआ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ द रिस्पेक्ट, एज बर्मन सर सेड, द अडोरेशन दैट दे गिव यू, दे मेक यू फील लाइक अ फैमिली. बहुत फेमिलियर लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना. और वहाँ के सेट का खाना, विश्वा सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा. तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे. सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर. अभी मैं भी बोलने वाला